ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈंड ਦੀਆਂ। फिलहाल हुण ओदे की सिट्टा निकल के सामने आ रहा है? श्योर, हमने भी फाइल लगाई है विदाउट आइल्स 24 अक्टूबर से पहले। बट मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, बी प्रिपेयर, तैयार रहिए। आपका इंटरव्यू के चांसेस हाई हैं। डेफिनेटली एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू में क्वेश्चन यही आएंगे कि पहले तो वो चेक करना चाहिए कि आपकी इंग्लिश कैसी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि न्यूजीलैंड ही क्यों, यही कोर्स क्यों, सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो आप न्यूजीलैंड से क्यों करना चाहते हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं। कीप इन माइंड, अगर आपके फ्रॉड डॉक्यूमेंट है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। और अपने आप को प्रिपेयर रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे जोर दीजिए। लिसनिंग क्लासेस लगाइए, लिसनिंग के लिए सीडी सुनिए, इंग्लिश मूवी सुनिए और इंग्लिश में बात करिए, ताकि आप प्रिपेयर रहें। वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा तो वो हो सकता है वीज़ा देने के लिए आपका इंटरव्यू ले रहा हो, बट कीप इन माइंड, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। अदरवाइज रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਜ਼, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਜ਼। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, FTS ਤੇ ਨਾਨ FTS। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ FTS ਦਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ FTS ਨਾਨ FTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ डिफरेंस नहीं रहा। प्रदीप जी की कहना चाहूंगे स्टूडेंट्स में? देखिए, पहले तो एक गुड न्यूज, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि 24 अक्टूबर के बाद विदाउट आइल्स बंद हो चुका है। मतलब इससे कहीं ना कहीं फायदा, बहुत कुछ मार्केट को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि विदाउट आइल्स जो बच्चा जा रहा था वो वहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहा था उसकी इंग्लिश वीक होने के कारण। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज, 24 अक्टूबर के बाद विदाउट आइल्स टोटली बंद, आपको आइल्स करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड जो बात आ रही है वो FTS और नॉन FTS। इनमें फर्क यही है, जो बच्चा नॉन FTS में जा रहा है
उसके पास 6 मंथ ओल्ड पैसे होने चाहिए। एजुकेशन लोन वो ले सकता है, वो करंट का एक्सेप्टेबल है, जीपीएफ है वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो एफडी, सेविंग, पोस्ट ऑफिस जो बच्चे हैं, इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। 6 महीने पुराने पैसे के साथ फाइल एम्बेसी में लग रही है तो फीस कॉलेज को सिर्फ देनी है और बच्चा फ्लाइट पकड़ सकता है। एफटीएस में क्या है कि जिस बच्चे के पास करंट के फंड्स अवेलेबल हैं बट सोर्स के साथ, लाइक करंट फंड्स हैं बट सोर्स के साथ, वो एफटीएस में जा पाएंगे। अब वो नहीं बात रहेगी कि भाई आपके पास आपने इधर उधर से पैसा अकाउंट में डाला, जिसके हाथ ना पैर, वो फाइल नहीं लग सकती, उसकी 100% रिजेक्शन आएगी। जिस बच्चे के पास करंट फंड्स है और उसका सोर्स है वो एफटीएस में जाएगा। उसमें फीस के साथ साथ उसको $15,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, जो वहां जाके बच्चों को वापस मिलेंगे $1250 पर मंथ। तो इसमें डिफरेंस यही है कि भाई अब एक 6 मंथ ओल्ड, एक करंट, ठीक है। तो अगर आपके पास करंट से सोर्स के साथ है, नो प्रॉब्लम। अगर 6 मंथ ओल्ड है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट डज नॉट मीन कि भाई आप कहीं से भी कोई भी पैसा डालो, वो नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, सो थोड़ियां जिਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਟੀਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਫਟੀਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐਫ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਪੀਪੀ ਤੇ ਨॉन ਆਈਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਪੀ ਨॉन ਆਈਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ नॉन ਆਈਪੀਪੀ ਆਈਪੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, मैं चाहूंगी एक बार प्रदीप जी तुसी स्टूडेंट्स नु जरूर शेयर करो ये है कि एग्जैक्ट आईपीपी और नॉन आईपीपी में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। आईपीपी के अंदर क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, 8 यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में टोटल, वो सारी प्लस कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज को उन्होंने लिया है। उसके अंदर अगर बच्चा जाता है तो फास्ट वीजा प्रोसेस है। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे फाइल एम्बेसी में लगती है, उससे पहले फाइल बना के हमें कॉलेज को देनी होती है, जिसमें उसके फंड्स, उसके एकेडमिक, उसका आइल्स और उसके क्या नाम है जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके एफिडेविट्स और उनके फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स हमें कॉलेज को भेजने पड़ते हैं एम्बेसी में भेजने से पहले। कॉलेज अगर उसको चेक करता है, चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई है तो एक नॉमिनेशन लेटर मिलता है। उस नॉमिनेशन लेटर के साथ अगर हम फाइल एम्बेसी में लगाते हैं तो वो फास्ट वीजा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन चूंकि कॉलेज बाहर बैठे हैं तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट बैठे हैं उन्होंने इस सिस्टम को अब्यूज किया, गलत फायदा उठाया, गलत डॉक्यूमेंट लगाए, गलत फंड्स लगाए, इसलिए एम्बेसी उस पर वेरिफिकेशन उन्होंने शुरू कर दी और कहीं ना कहीं वो एम्बेसी स्ट्रिक्ट होगी। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि आईपीपी और नॉन आईपीपी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जहां इंडिया में कंसल्टेंट और एजेंट्स बैठे हैं उन्होंने इसको सिस्टम को गलत यूज़ किया था। तो आज की डेट में आईपीपी में कोई फाइल लगा रहा है तो उसकी भी वेरिफिकेशन हो रही है, जो नॉन आईपीपी में लगा रहा है उसकी भी वेरिफिकेशन हो रही है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आईपीपी में लगाओ तब भी वेल एंड गुड, नॉन आईपीपी में लगाते हो तब भी वेल एंड गुड। आज की डेट में मतलब एक तरह से इक्वल सा है सब कुछ। जी बिल्कुल दर्शकों, सो ये थोड़े छोटे ਜਿਹੇ डिफरेंसेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ एक्सेप्ट हो रहे हैं, ईच कितने मॉड्यूल होना चाहिए, ओवरऑल कितने मॉड्यूल च बैंड होने चाहिए? देखिए यहाँ पे 2 टाइप के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 को हम प्रमोट नहीं करते, कैटेगरी 1 और 2 में हम बच्चों को भेजते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो उसको पॉलीटेक्निक बोलते हैं। वहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो तो मोस्टली कॉलेजेस डिप्लोमास के लिए 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड मांगते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम से जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसा प्रोग्राम है उसको कुछ कॉलेजेस में जैसे V3I कॉलेज है वो 5.5 बैंड पे भी एक्सेप्ट कर लेता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो बच्चे 12th पास जा रहे हैं तो उनको 5.5 बैंड नो लेस देन 5 लेने होंगे। मतलब अगर आपके पास 5.5 बैंड है, 12th पास हैं तो आप डेफिनेटली आराम से जा सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस की 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं
वो ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जाएंगे और ग्रेजुएट डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। जो बच्चे पीजी और मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है। जी बिल्कुल दर्शकों, सो आइल्स ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਦਾਂ ਦੇ स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती है। जी देखिए, आज की डेट में सारी की सारी एम्बेसीज एक सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। मीन्स उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी स्टार्ट कर दी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज और न्यूजीलैंड वो फाइल लगाना चाहता है तो वो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट को जरूर बताएं और कंसल्टेंट एम्बेसी को जरूर बताएं। अगर हाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिफ्यूजल के चांसेस यहाँ भी रहेंगे। मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। अगर आप रिफ्यूजल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्लस में अपना रिफ्यूजल लेटर प्लस अपना क्या नाम है जो फाइल आपने एम्बेसी में लगाई थी अगर उसकी फोटोकॉपी भी आपको अवेलेबल हो सके ये डॉक्यूमेंट के साथ अपने कंसल्टेंट से मिलिए। अगर उसमें पॉसिबिलिटीज हैं तो आपका वीज़ा जरूर लगाने के चांसेस होंगे, लेकिन कीप इन माइंड आपके फेक डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। आपका फेक डॉक्यूमेंट के कारण रिफ्यूजल नहीं आना चाहिए। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका रिफ्यूजल है तो आप प्लीज़ उसको हाइड मत करिए बल्कि एम्बेसी को बताइए, क्योंकि एम्बेसी को अगर आप नहीं बताते तो ऑटोमेटिक जब एम्बेसी में फाइल जाती है तो वो अगर जब जैसे ही आपका नाम और पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएंगी। पर्टिकुलर ये किसी एम्बेसी से रिफ्यूज है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजर न्यूजीलैंड लगा रहा है तो न्यूजीलैंड एम्बेसी को ऑलरेडी पता है। अगर न्यूजीलैंड रिफ्यूजर ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को ऑलरेडी पता है। अगर आप नहीं बताते तो आपका रिफ्यूजल के चांसेस रिफ्यूजल तो दोबारा आ ही जाएगा। अगर आप बताते हैं तो चांसेस विल बी हाई फॉर गेटिंग द वीजा। ਸੋ ਆਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।